So well, we have started with bases and dimensions of a vector space over the field F. Bases and dimensions of a vector space. तो definition तो हमने कर ली थी. If V is a vector space over the field F and S is a set of V such that S is linearly independent and LS is equal to V, a subset S of V. Subset S is a subset of V such that S is linearly independent and LS is equal to B means each vector of V can be written as a linear combination of the elements of S. Then we can say that S is a basis or B over the field F. S हमारे पास एक subset होगी of V की such that S is linearly independent and L linear span of S is equal to B, then it is known as the basis. और हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे. अब हम लिखते हैं dimensions of a vector space B over the field F. So the number of elements in the basis set. See the number of elements in a basis set is dimensions of vector space. ठीक है. In a base, किसी भी basis set में bases are not unique. अभी हम बता देंगे कि कैसे, मतलब एक वेक्टर स्पेस के पास डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस सेट इज ऑलवेज सेम विच इज नोन एज द डायमेंशंस. ये सेम रहेंगे. अगर दो बेसिस हैं तो उन दोनों बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एक बेसिस में n है तो दूसरे बेसिस में भी क्या होंगे n, और उस n को हम कहेंगे दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस. फर्दर हम लिखते हैं डायमेंशंस में ही if number of elements in basis set is finite, if number of elements in basis set finite, number of elements in basis set finite, then the set is finite dimensional, then the vector space is finite dimensional. Finite dimensional vector space is one in which the dimensions are finite, and if number of elements in basis set is infinite, then vector space is infinite dimensional vector space. This is the difference between finite dimensional and infinite dimensional vector space. If the number of elements in the basis set infinite, then the vector is infinite dimensional vector space, and if the number of elements in the basis set is finite, if dimension finite है तो finite dimensional, dimensions infinite तो infinite dimensions. So this is the dimensions of a vector space. अब R cube की dimensions कितनी है? Dimensions of R cube, basis of R cube देखते हैं. basis set standard basis of R cube है ना, basis of R cube कौन है? 1 0 0 स्टैंडर्ड बेसिस हैं जी, और भी हो सकते हैं 0 1 0. अभी हम देखें 0 0 1. So number of elements in this set is equal to 1 2 3. So dimensions of R cube is equal to 3. Similarly, dimensions of R square is equal to 2. Dimensions of R raised to power n is equal to n. So this is the dimensions means number of elements in the basis set. तो साथ साथ हम वेक्टर स्पेस भी
लिखते रहेंगे, साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि वेक्टर v, इसको शो कर लेते हैं पहले, ठीक है। शो दैट the vectors वेक्टर्स हैं हमारे पास 1 1 0 1 1 0 कॉमा 1 0 1 कॉमा 0 1 1 0 1 1 forms a basis for R क्यूब। देखो R क्यूब के अभी तो आपने एक बेसिस पढ़े 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब ये भी कहता है कि दिस आल्सो फॉर्म्स अ बेसिस। अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो सेट ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा। शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस वन फॉर्म्स अ बेसिस फॉर आर क्यूब। और इसमें भी एलिमेंट कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब कितनी है? 3। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि दिस सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू शो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस होने के लिए एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और एल एस को आर क्यूब के बराबर होना पड़ेगा। लीनियर इंडिपेंडेंट तो हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। लेट ए 1 1 0 प्लस बी 1 0 1 प्लस सी 0 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0। वी हैव व्हाट आर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि ए बी सी की क्या वैल्यूज आती हैं। अगर ए बी सी की सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज क्या बन जाएगा? इट इज डिपेंडेंट। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, a plus c is equal to 0 and this is b plus c is equal to 0, ठीक है। a plus b is equal to 0, a plus c is equal to 0 and b plus c is equal to 0। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करें तो a और a कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है? b प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें तो यू विल गेट 2b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 0। तो b अगर 0 हो गया तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a भी क्या हो जाएगा? 0। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c भी क्या हो जाएगा? 0 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए? 0 0 एंड 0। देयरफॉर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया? all the scalars are equal to 0, a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to 0। therefore the set S is linearly independent। अब आपने ये शो करना है कि this set generates R cube। to show S spans R cube। S spans R cube means span of S is equal to R cube। तो हम आर क्यूब का कोई वेक्टर कंसीडर करेंगे। एनी वेक्टर यू कैन कंसीडर। आर क्यूब होता क्या है? आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहो तो दिस इज एक्स वाई जेड सच दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किसके एलिमेंट हैं? रियल नंबर। तो आप एक एलिमेंट ले लेंगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड क्या है? एक्स भी रियल है, वाई भी रियल है और जेड भी रियल है। मैं सपोज करता हूँ इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 0 प्लस 1 0 1 प्लस 0 1 1। इन 3 वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन तब होगा जब यहाँ पे कुछ स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। स्केलर्स हैं। स्केलर्स कहाँ से आते हैं? फील्ड से। तो फील्ड यहाँ पे कौन है? रियल नंबर। वेयर ए बी सी भी क्या है? रियल नंबर। अगर ये ए बी सी रियल नंबर मिलते हैं, अभी ठीक है, ए बी सी हमें रियल नंबर सचमुच मिल जाते हैं। अभी रहने दो इसको। ए बी सी क्या मिल जाएंगे? अगर रियल नंबर मिल जाएंगे विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तब हम कहेंगे कि एल एस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो फिर से हम इक्वेशंस बना लेते हैं। वही इक्वेशंस आएंगी। पहले 0 0 0 आ रहा था, अब क्या आ रहा था? एक्स वाई और जेड। तो मेरे पास इक्वेशंस वही रहेंगी। ए प्लस बी, पहले मैं लिख लूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई किया ये ए आ गया,
जीरो बी आ गया, फिर जीरो सी सी आ गया, फिर कंपोनेंट वाइज एडिशन की तो दिस इज ए प्लस बी, सी तो जीरो है, कॉमा दिस इज ए, बी जीरो है, प्लस सी, कॉमा ए तो जीरो है, और बी कितना हो गया, बी और प्लस सी। कंपोनेंट पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर वेक्टर एडिशन, फिर हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास आया a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशंस वही है, वहां पे जीरो जीरो था, यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, और हमने वैल्यूज एक्स ए बी सी की ही निकालनी है। a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, a प्लस सी इज इक्वल टू वाई, एंड b प्लस सी इज इक्वल टू जेड। फिर से हम इन दो इक्वेशन से वैल्यू दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनको माइनस किया, मेरे पास आया b माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसको इससे घटा दिए, और दूसरा क्या था b प्लस सी इज इक्वल टू जेड। अब इसको फिर से ऐड किया तो वी विल गेट 2b, एडिशन कर दी हमने, दिस इज 2b, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या b रियल नंबर है? यस, क्योंकि x इज ए रियल नंबर, y इज ए रियल नंबर, z इज ए रियल नंबर, तो ये सारा 2 भी रियल नंबर है, इन सबका ये जो बन जाएगा एडिशन एंड डिवीजन, ये रियल नंबर ही बनेगा। तो b हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर। तो b की वैल्यू तो आ गई। अब देखते हैं c की वैल्यू क्या आती है। कहीं भी किसी इसमें पुट कर दो आप c की वैल्यू, तो यू विल गेट c इज इक्वल टू, एंड देन a इज इक्वल टू, a और c की वैल्यूज आप निकाल लो इनको, और ये वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी आपके पास। c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई माइनस सी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। ये पुट करके देख लेना, यू विल गेट दिस थ्री वैल्यूज, और ये तीनों क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर, तो दिस बिलोंग्स टू रियल, दिस बिलोंग्स टू रियल, एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू रियल। देयरफॉर यू कैन राइट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की जगह लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 इंटू जो वेक्टर था, ए वेक्टर था मेरे पास 1 1 0 1 1 0, प्लस बी की जगह लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर था, सी की जगह लिखा जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे वेक्टर आएगा 0 1 1। तो व्हाट इज दिस? एवरी वेक्टर और आर क्यूब कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब इज स्पैन्ड बाय एल एस। तो आपने फर्स्ट में शो कर दिया कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड में शो कर दिया कि एवरी वेक्टर ऑफ एक्स एस, एवरी वेक्टर ऑफ आर क्यूब कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, देयरफॉर दिस S इज ए बेसिस। दिस इंप्लाइज दैट S इज ए बेसिस। किसका बेसिस है? आर क्यूब का। और अभी देखो दो बेसिस, S इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो एक बेस तो स्टैंडर्ड बेस आपको पता ही था, एक ये दूसरा बेस आपको मिल गया। इस तरह से और कई बेस हो सकते हैं, लेकिन हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे। और आगे अगर आपके पास टाइम कम है और आपके पास, आपको पता है, आप लिख देंगे कि डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, एंड दिस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, एंड S इज लीनियर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर S इज अ बेसिस। फिर आपको जरूरत नहीं, अगर शॉर्ट में लिखना है तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन शो कर दो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला भी, मतलब आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाले को स्किप कर सकते हैं बाई राइटिंग दिस डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3 एंड S इज लीनियर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर S इज अ बेसिस। कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगी जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे, तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? बेसिस बन जाएगी। ये आपने ऐसे दिमाग में रखना जब कभी टाइम की कमी हो तो, अदरवाइज आपने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जरूर शो करना, बड़ा क्वेश्चन होगा तो शो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट का
पॉलिनोमियल के बेसिस क्या होते हैं? B इज ए वेक्टर स्पेस, सपोज V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स P and X, ठीक है। पॉलिनोमियल P and X भी लिखते हैं और फील्ड के बार R अलग से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ए दिस सेट ऑफ बेसिस शो दैट this is a V is a vector space of polynomials over field F, ठीक है, over field F of degree less than or equal to n. तो this is stands for the P n डिग्री, और कई बार यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है P n F, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर द फील्ड f। तो पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड f ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, देन शो दैट द सेट S1 x x square सोन x रेज्ड पावर n इज अ बेसिस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस होंगे, इज अ बेसिस ऑफ V, यही V है, इज अ बेसिस ऑफ V। तो अब इसको शो करने के लिए पहले तो इसको क्या शो करना पड़ेगा? दिस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू शो दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज हमारे पास स्केलर्स हैं A0, A1, A2 सोन AN चाहिए बिलोंग्स टू F such that their linear combination A0 into 1 plus A1 into x plus A2 into x square plus so on plus an into xn is equal to 0। अब ये जो 0 है कौन से साइड को? राइट हैंड साइड को। ये 0 पॉलिनोमियल है, दिस इज 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल 0 into x, 0 into x square, 0 into x4, so this is 0 पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखा जाएगा और फिर पॉलिनोमियल्स को इक्वेट किया जाए, ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, डिग्रीज x वाले कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस होल इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स यू विल गेट A0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो सभी कोफिशिएंट है 0, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट A1 is equal to 0, A2 is equal to 0 and so on, AN is equal to 0. So what is it? Linear combination of is equal to 0 implies that all the scalars are is equal to 0. This implies क्या imply करेगा? This set S is linearly independent। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही हो गया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो 0 पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ 0 plus 0 into x plus 0 into x square and equating the coefficients, तो सारे coefficients क्या आ जाएंगे? 0 0 0। तो सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरा लिखेंगे कि ये स्पैन करती है V को, V मैंने यही लिखा हुआ है, टू शो दैट S स्पैन्स LS इज इक्वल टू V। V कौन सा है? दिस होल स्पेस पॉलिनोमियल्स का। तो LS V के लिए फिर से हम क्या लेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन एंड दिस इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ V। तो V का एलिमेंट कौन होगा? V का एलिमेंट होगा पॉलिनोमियल ओवर f ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो देखो वो पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, एंड दिस इज ए पॉलिनोम फील्ड f भी क्या है? रियल नंबर की ही है। तो दिस इज रियल नंबर की नहीं हो तो हम ले लेते हैं कि अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 सोन अल्फा n बिलोंग्स टू f। फील्ड के लिए रियल होंगे तो रियल के होंगे, जो भी होंगे। तो दिस इज, अब हम इसका एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो पॉलिनोमियल जाएगा अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस सोन प्लस अल्फा n xn। दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ V, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है किसमें लिखा जाएगा? इट शुड बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। तो इन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए और वहां पे भी कुछ स्केलर चाहिए, तो वो स्केलर लिखता हूं मैं A0 into 1 प्लस A1 into x प्लस A2 into x स्क्वायर प्लस सोन प्लस AN into xn। अब मैं देखूंगा कि ये A0, A1, A2, AN कुछ मुझे कुछ मिलते हैं,
इसके फील्ड के एलिमेंट, तो मैं कह दूंगा कि यस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस पॉलिनोमियल इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, दीज n+1 की वैल्यू कितनी, अल्फा नॉट a1 की वैल्यू कितनी, अल्फा 2, तो a नॉट इज इक्वल टू अल्फा नॉट, है ना, a1 इज इक्वल टू अल्फा 1, सो ऑन an इज इक्वल टू अल्फा n। तो ये जो सारे हम मिल जाएंगे, जो यहाँ पे होगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसा कोई पॉलिनोमियल है उसको यहीं पे ही लिख देंगे। तो आई कैन राइट, सो ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल f(x) कैन बी रिटन एज ए linear combination of 1 x, x square and x, and therefore ls is equal to b, so here it is the basis। तो सिंपल सा ये ही आ गए, जो a नॉट था वो क्या आ गया, अल्फा नॉट a1 अल्फा 1, और ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ f, तो a नॉट a1 a b क्या हो गए, फील्ड के एलिमेंट्स। सो दिस इज द, अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बेसिस सेट में, दिस इज ए बेसिस, ये बेसिस बन गए, और डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, एलिमेंट्स इन S, एंड विच इज इक्वल टू कितने हैं ये, n+1, डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू n+1। तो